السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام کریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری اسلامک ماں اور بہنوں، آج اس درس میں جو صورت رکھیں گے وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ نور کی تفسیر، اس کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے۔ اور سورہ نور مدنی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے جس کے 64 یعنی 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہے۔ انشاءاللہ یہ صورت دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں یہ سورت کو رکھنے کا مقصد کیا ہے، سورہ نور کو رکھنے کا مقصد کیا ہے، سورہ نور کا انتخاب کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ آپ لوگ اس کی مقصد پتہ چل جائے، اس کی اہمیت پتہ چل جائے، تو پھر آپ لوگوں کو اس سورت کو سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ یہ سورت ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے احکامات کو بیان کیا، ایسی چیزوں کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کے اندر، جو کسی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کیے۔ اور اس سورت کو پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیے، کیونکہ جس طریقے سے ہم لوگ جانتے ہیں آج پورے ماحول میں، پورے معاشرے کے اندر جس ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، وہ کون سا فتنہ ہے؟ بے حیائی کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، بے شرمی کا فتنہ۔ مجھے بتائیے میری بہنوں، آج ہمارے نزدیک، ہمارے ماحول میں کہاں برائی موجود نہیں ہے؟ کہاں پہ بے حیائی موجود نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں بے حیائی موجود ہے، ہمارے لباس میں بے حیائی موجود ہے، ہمارے نگاہوں میں بے حیائی موجود ہے، تو بے حیائی موجود ہے۔ تو یہ سورہ نور مجھے اور آپ کو اس کا اصول بتاتا ہے، پاک دامن کے اصول بتاتے ہیں۔ ایک انسان کو کس طرح کا اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، وہ اصول مجھے اور آپ کو بتاتی ہے سورہ نور۔ انسان کو اپنے آپ کو کس طرح برائیوں سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے، پاک رکھا جائے، کس طرح کا عفت اور پاک دامن کو اختیار کیا جائے، وہ سورت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے۔ کیا سکھاتی ہے؟ پاک بازی کے اصول کو بتاتی ہے، بے حیائی سے بچنے کی تدابیر بتاتی ہے، بے حیائی سے کس طرح روکا جاتا ہے۔ یہ سورت مجھے اور آپ کو تعلیم دیتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وہ نصیحت کی جو ہم عورتوں کے لیے، ہم خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری بہنوں، یہ سورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ صحابہ اکرام کے بہت اہم کے حامل تھی یہ۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، یعنی تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی سکھلاؤ۔ کون کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہیں، کوفہ والا کو کہتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، اسی لیے کہ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکامات بیان کیے ہیں، وہ چیز بیان کی ہے جو خواتین کو جاننا، جن احکامات کو عورتوں کو جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورت مردوں کے لیے، مطلب عورتوں مردوں کے دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم کو اپنی عورتوں کو سورہ نور کی اسی لیے تعلیم دو کہ اس کے اندر، سورہ نور کے اندر خواتین کے لیے ایسے احکامات بیان کیے، ایسے قوانین بیان کیے گئے، ایسی چیز بیان کیے گئے جس کے خواتین کو علم رکھنا بہت ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ یہ سورت کی یعنی چوز کرنے کا مقصد آپ کے سامنے میں بیان کر رہی ہوں۔ اس سورت کا اصل مطلب کب نازل ہوئی اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا نازل ہونے کا ثانی نزول کیا ہے، اس سورت کا پس منظر کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم لوگ جانتے ہیں کئی مرتبہ مطلب واقع افک کو رکھا گیا، کون سا واقعہ؟ واقع افک کو۔ یہ جانتے واقع افک کو کس کو بولتے ہیں؟ جس طرح رکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہ، اسی کو بولا جاتا ہے، جو بہتان لگایا گیا، جو تہمت لگائی گئی، اس کو واقع افک کے نام سے وہ مشہور ہے۔
वाक़या इफ्क, वाक़या इफ्क के नाम से वो वाक़या जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ था वो वाक़या मशहूर है। तो इसी तरह सूरत मतलब गज़वा मुस्तलिक के बाद नाजिल हुई, मतलब गज़वा बनी ये 6 हिजरी में हासिल हुई थी, उसके बाद ये नाजिल हुई। इस तरह मतलब गज़वाए मुस्तलिक ये जो वापसी के मतलब वापसी के दौरान एक ऐसा वाक़या नोरमा हुआ मतलब पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल होता था कि आप अपने ख़वातीन में से, आप अपने बीवियों में से किसी एक को सफ़र में लेके जाते, यानी कुरान दाजी के साथ जिसका नाम उठता उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ले जाया करते थे। इसी तरह गज़वाए बनुल आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ली। और इसी तरह गज़वाए मुल्क जो ख़त्म हो गई, जब वापस आप आ रहे थे, उसी वापसी के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार गुम हो गया था। जिस तरह आप सब जानते हैं एक तवील वाक़या है इसका। ये तवील वाक़या आयत नंबर 11 से लेके आयत नंबर 20 तक ये कल इसका मैं बताऊंगी। इसका थोड़ा सा मैं बतलाती कि वाक़ये के अंदर हुआ क्या कि आपका जैसे हार गुम हुआ तो मुनाफिकून ने एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा, एक बहुत बड़ा फितना मचा दिया था। वो क्या फितना था? अम्मा आयशा पर तोहमत लगाया गया, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे बहतान लगाया गया। वो पूरे माशरे में और पूरे माहौल में एक ऐसा फितना खड़ा कर दिया गया कि जिसके फितने को लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हुआ करते थे। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कई दिन तक रोते रहती थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान होने के बावजूद भी 1 महीने तक कोई वही नाजिल नहीं, 1 महीने तक कोई वही नाजिल नहीं होती तो अल्लाह के नबी और परेशान हो जाते हैं। और अम्मा आयशा रज़ी रोते जाती यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे 1 महीने के बाद इस सूरत को सूरह नूर को नाजिल किया। कौन सा सूरत को नाजिल किया? सूरह नूर को नाजिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की। और सूरह नूर को नाजिल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बड़े अहम चीज़ के वजाहत कर दी। पहली चीज़ थी ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाले के लोगों के लिए बतला दी कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत तक आने वाले बतला दिया, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए बतलाया गया अम्मा आयशा बेकसूर है। तो पहली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत कर दी कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकी को बयान कर दिए और आपकी बारात के इस सूरत के अंदर मतलब नाजिल कर देंगे। ये बतला दिया गया कि लोगों सुनो, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसा काम नहीं कर सकते। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बरी हैं, पाकबाज हैं, एक इफ़्फ़त पाक दामन वाली औरत है। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों के लिए बतला दिया गया अम्मा आयशा की इस सूरत के अंदर उनको बतला देगी उनकी पाकी को। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि इस सूरत के अंदर वजाहत कर दिया गया कि ये वजाहत कि इस वाक़ियों को लेकर यानी वाक़या इफ्क को लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अहकामात को इस सूरत के अंदर बयान कर दिए, ऐसे कवानीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर बयान कर दिया, ऐसे नसीहत को अल्लाह तबारक व तआला बयान कर दिए कि आने वाले क़यामत तक नस्लों के लिए आने वाली जितने लोगों हैं उस तमाम के लिए इसके अंदर बेहतरीन दलील, बेहतरीन उनकी ज़िंदगी में अगर सूरह नूर को इख्तियार करेंगे ना तो उनकी ज़िंदगी में अमन और सुकून पैदा हो जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़ये को लेकर ये वजाहत कर दी कि एक ऐसा सूरा है जिसको पढ़ने पर हम दुनिया और आखिरत में चैन और की ज़िंदगी अमन की ज़िंदगी बना सकते हैं। ये सूरत का पस मंज़र था। तो इंशाअल्लाह असल सूरह की तरफ आते हैं। तो पहले सूरत की एक इसका देख लेते हैं। सूरतुल अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिहा वतिया लअल्लकुम तत्तक़ून। पहली आयत में अल्लाह ताला बताते हैं जिसको हमने नाजिल किया, अंज़लना जिसको हमने नाजिल किया। यहाँ पे अंज़लना मतलब अपने अहमियत बतलाते हैं, यानी हमने नाजिल किया।
मेरे बहनों मुझे बताइए कुरान मजीद में कितनी सूरत मुकम्मल है? 114 सूरा है। और उस सब को नाजिल करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। यानी 114 सूरत नाजिल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और लेकिन इस सूरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन अंदाज में इसको शुरू करते हैं, यानी बेहतरीन तरीके से इसको आगाज करते हैं। कहते हैं कि सूरतुल अंज़लना, ये ऐसी सूरत है जिसको हमने नाजिल किया। कौन नाजिल कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हुए अहमियत बता रहे हैं कि वो ज़ात इस सूरत को नाजिल कर रहा है कि जिस ज़ात को मुझे और आपको बनाया, मुझे और आपको पैदा किया, वो ज़ात इस सूरत को नाजिल कर रहा है। यानी इसके अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल करने में ये वो सूरत है जिसको किसी ने नाजिल नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको नाजिल करते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला करते हैं वतवरनाहा, और हमने फ़र्ज किया। क्या फ़र्ज किया अल्लाह ताला ने? अहकामात को, यानी इसके अंदर बल्कि खुद अल्लाह तबारक व तआला इसको खुद नाजिल करते। फिर आगे अल्लाह ताला का व फरगना, मतलब हमने फ़र्ज किया। क्या फ़र्ज किया अल्लाह ताला ने? अहकामात को, यानी इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात को फ़र्ज किए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज़ों को इसके अंदर फ़र्ज किया जिसके अंदर हम लोग जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला यहाँ क्यों कहा फ़रदनाहा, इसलिए कहा कि हमने फ़र्ज किया। अब मुझे बताइए कि जो चीज़ फ़र्ज है उसका दर्जा क्या होगा? यानी कंपल्सरी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि अगर किसी चीज़ को हम पर फ़र्ज कर दिया कि जैसे नमाज को हम लोग के ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज कर दिया क्या, तो फ़र्ज नमाज को क्या करना? उसके अंदर छूट के अंदर कोई रुख्सत है? उसमें कोई रुख्सत नहीं है। फ़र्ज नमाज में कोई कमी नहीं कर सकते हम। फ़र्ज का मतलब ये है कि आपको छोड़ते हैं तो क्या होगा कि गुनाहगार होंगे। हम नमाज को छोड़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब कह दिया कि हमने फ़र्ज कर दिया, तो अब ये आपको लाजिम सी बात है कि आप उसको, मेरी और आपकी ज़िंदगी उसको अदा करें। तो इसीलिए अल्लाह पाक कहे फ़र्द ना हो, उसके अहकामात को तुम पर हमने फ़र्ज कर। अब इस अहकामात को तुम पर जानना बे इंतहा ज़रूरी है। फिर आगे अल्लाह पाक ने कहा व अनज़लना फ़ीहा आयातिया लअल्लकुम तत्तक़ून, इसके अंदर ऐसी वजाहत वाली ऐसी चीज़ें खोल के बयान कर दी, यानी पूरे बाज़े हमने बयान कर दिए। ऐसी नहीं कि कोई चीज़ के अंदर शक हो, ऐसी चीज़ों के अंदर हमने बयान कर दी, मतलब बिल्कुल वजाहत के साथ बयान कर दी। ठीक है। फिर अल्लाह ताला को लअल्लकुम तत्तक़ून, मतलब ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ये अहकामात को सीखो और इस पे अमल करो, क़यामत तक उसको याद रखो। ये पहली आयत थी। फिर उसके बाद देखिए अल्लाह ताला दूसरी आयत में जो अल्लाह तबारक व तआला बयान करते हैं, इस अहकामात बयान करते हैं। आप मेरे और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी बुराई, मतलब बुराई के अहकामात बयान करते हैं जिस पर मुझे और आपको अमल करना जरूरी है। वो यहाँ से अहकामात शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला का अज़्ज़ानी तू फज़ली तू कुल्लुबाहा, यानी ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरतें और ज़िना करने वाले मर्द, उनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाया जाए। कितने कोड़े? 100 कोड़े लगाए जाए। अल्लाह अकबर। ये ज़िना एक ऐसी, मतलब इतनी कवाहत वाली बुराई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सज़ा के बारे में बताया कि अगर कोई औरत अगर ऐसा काम करे या ऐसी बुराई करे, फज़लिदू कुल्ल वाहिम मैंने अतज़ल्ला, मतलब उसको 100 कोड़े लगाया जाए। कितने कोड़े? 100 कोड़े। इस्लामिक शरीयत के अंदर, इस्लामिक हुकूमत के अंदर उनको 100 कोड़े लगाया जाए। और यहाँ पर गैर शादीशुदा के लिए वसूल बताया गया। अगर कोई गैर शादीशुदा ज़िना का काम करे या वो बुराई करे तो उनके लिए 100 कोड़े लगाया जाए, और वो शादीशुदा हैं, ये काम करे, शादीशुदा होकर ये बुराई करे, तो उनके लिए ये हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि उनके लिए रज्म की सज़ा दो। अल्लाह अकबर। रज्म का क्या मतलब है? पत्थरों से उनको मार मार कर उनको ख़त्म किया जाए। अगर वो कुंवारे हैं, अगर ये गुनाह करने वाले, जिना करने वाले मर्द या औरत है, कुंवारे हैं, गैर शादीशुदा हैं, तो उन पे इस्लामिक हुकूमत के अंदर 100 कोड़े लगाए जाए। अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो उनको रज्म की सज़ा दी जाए, पत्थरों से मार मार कर उनको ख़त्म किया जाए। इसीलिए कि उन्होंने ऐसा घर बर्बाद किया, घर के एक एक ईंट को उन्होंने बर्बाद किया। इसी वजह से उनको, उसको भी जो गुनाह का काम करने वाले हैं, जिसे ऐसी बुराई की, उसको पत्थरों से मार मार के उनको ख़त्म किया जाए। अल्लाह अकबर।
फिर आगे मतलब जैसे आप लोग ज़िना एक ऐसी बुराई है, अल्लाह सबको हिफाजत करे। दूसरी औरत के साथ गैर ताल्लुकात यानी नाजायज़ ताल्लुकात, वो ताल्लुकात जो एक मर्द का अपनी बीवी के साथ हलाल रिश्ता होता है, हलाल ताल्लुकात होते हैं, वो गैर औरत के साथ अंजाम देना, हराम काम करना, इसको ज़िना कहते हैं। इसकी इतनी बुराई अल्लाह तबारक ताला ने बतलाया कि इतनी सज़ा अल्लाह तबारक ताला ने बताया कि फज़लिदु कुल्ल वाहिद मिन्ना अतल जल्दा, ऐसा काम करने वाले मर्द हो या औरत हो, इन दोनों को 100 कोड़े लगाया जाए। अब आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, यानी ये सजा देने के मामलात में उनको नरमी इख्तियार मत करो। यानी जब अगर तुम अल्लाह पर, आखिरत पर, दीन पे ईमान रखते हो, तो जिसने ये बुराई का काम किया उनको 100 कोड़े लगाया जाए। अल्लाह के हुक्म से नाफिज करने में नरमी बिल्कुल न करो। अगर तुमने नरमी की तो समझ लीजिए कि तुम अल्लाह के अहकामात को नाफिज करने में तुम सुस्ती कर रहे हो। यानी अल्लाह का जो हुक्म है उसको नाफिज करना ही करना है, तुमको अब उन पर रहम खाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि वो सजा देते वक्त मुसलमान की एक बहुत बड़ी जमात वहां पे हाजिर होना चाहिए। क्या उनको सजा देते वक्त बड़ी जमात वहां पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बतलाना, यानी सजा देने के मामलात में उनको नरमी इख्तियार न करो। यानी जब अल्लाह पर और आखिरत पे, दीन पर ये ईमान रखते हो, तो जिसने ये बुराई का काम किया उनको 100 कोड़े लगाने में, अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने में बिल्कुल नरमी न करो। अगर तुमने नरमी इख्तियार की तो समझ लो कि तुम अल्लाह के अहकामात को नाफिज करने में तुम सुस्ती कर रहे हो। यानी अल्लाह का जो हुक्म है उसको नाफिज करना ही करना है, तुमको अब उनके ऊपर रहम खाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं वो सजा देते वक्त मुसलमानों की एक बड़ी जमात वहां पे होनी चाहिए हाजिर। यानी जिसने ये बुराई का काम किया, जिना किया, उसको सजा देते वक्त उनको बड़ी जमात वहां पे हाजिर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बल्कि ये बतलाना मकसद है कि उनको इबरत का मकाम बनाया जाए, दूसरों के लिए इबरत का मकाम, सबक का मकाम बनाया जाए। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम ये सजा दो तो पूरी पब्लिक के सामने दो, सबको बतला कर दो कि उन्होंने ऐसा गुनाह किया, ताकि दूसरे लोगों के लिए इबरत का मकाम बन जाए। फिर आगे अल्लाह तबारक ताला कहते हैं, आगे तीसरी आयत शुरू होती है, तीसरी आयत शुरू होती है, कहते हैं अल्लाह पाक यहाँ पर अगर गैर शादीशुदा है तो उनको रजम की सजा दी जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी के ज़माने के रजम के कई ऐसे वाक़यात हुए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को और इसी तरह औरतों को भी, मर्दों को भी रजम की सजा दी। फिर उसके बाद दलील ये है कि हदीस में आता है कि माईद बिन असलमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, सही बुखारी का वाक़या, अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिना किया। अस्तगफिरुल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी से कहते हैं कि मैंने जिना किया, तो अल्लाह के नबी कहते हैं, अपने मुंह को फेर लेते हैं और फिर दूसरे बात कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मैंने जिना किया। और फिर वो अल्फाज को 4 मरतबा दोहराते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैंने जिना कर लिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरतबा कहने के बाद जब जवाब देते हैं कि वाकई तूने जिना किया, तो कहते हैं हाँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं, क्या शादीशुदा है? यानी तू ऐसा है कि मतलब तेरी शादी हो चुकी है कि तूने शादी या गैर शादीशुदा है? तो वो कहता है कि मैं, मतलब वो कहते हैं कि मैं शादीशुदा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले अल्फाज में कहते हैं, क्या तूने वाकया ये गुनाह किया? वाकया तूने ऐसा काम किया? तूने ये दखूल किया? तो कहा हाँ मैं अल्लाह के नबी ये काम किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म देते हैं कि उनको ले जाओ को रज़म की सजा दो, यानी पत्थरों से मार के इनको खत्म कर दो। तो सहाबा ले जाते हैं, उनको रज़म की सजा देते हैं। ये वाकया है। और इसी तरह एक औरत थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ये सही बुखारी की हदीस है, मतलब गामी नाबी कबीले की एक कबीला था, गामीदा, उसका औरत थी और उन्होंने ये काम किया, यानी ज़िना का काम किया। और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ऐसा काम किया, मुझे पाक कर दीजिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चेहरा फेर लेते हैं, कैसा काम किया उन्होंने, और अल्लाह के नबी को बताते हैं कि अल्लाह के नबी फौरन गुस्से से चेहरा फेर लेते हैं। फिर वो औरत कहती है कि अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए, मैं अब हामिला हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ, जब बच्चा जन्म हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए तो वापस आना। तो वो औरत चली जाती है। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह के नबी के पास आती है, वो बच्चे को कपड़े में लिपट के लाती है कि अय अल्लाह के नबी आप मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये बच्चा छोटा है, इस बच्चे को ले जाकर उस वक्त आना कि ऐसे हालात में आना जब ये बच्चा दूध छोड़ दे और ये ग़िज़ा खाने लगे, यानी खाना या रोटी खाने लगे, ऐसी हालत में तुम वापस आना जाओ। तो फिर अल्लाह के नबी उस औरत को भेजा देते हैं। फिर जब औरत उस वक्त आती है, ऐसी हालत में आती है, वो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा होता है और वो दूध छोड़ दिया होता है। फिर अल्लाह के नबी के पास आके कहती है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये बच्चा दूध छोड़ दिया है, अब ये रोटी खाने लगा, अब ये मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाहू अकबर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को दूसरे मुसलमान के हवाले करते हैं। सहाबा को हुक्म देते हैं कि जाओ इस औरत को ले जाकर गड़ा खोद कर सीने तक उसको ढाप दो और उसके बाद रजम की सजा दो। अगर वो औरत है तो उसको इस्लामिक शरीयत से उसको रज्म की सजा देगी, उसको सीने तल सजा, उसको पत्थर से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा, ये रज्म की सजा है। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे आयत में, तीसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला तीसरी आयत में कहते हैं अज़्ज़ानी लीला, मतलब यानी जानी किसी औरत से निकाह ना करे बल्कि जीना करने वाले, मतलब जीना करने वाले मर्द और मुशरिका मर्द, मतलब जीना करने वाला एक जानी से निकाह कर सकता है, मुशरिक से ही निकाह करता है। और कोई जानिया एक मुशरिक मर्द से ही, एक जानी मर्द से ही निकाह कर सकती है। उनके लिए, मतलब मोमिनों के लिए उनके ऊपर हराम कर दिया गया है कि कोई जानी के लिए, यानी कोई ऐसी बुराई करे, उनके लिए पाकबाज उनसे निकाह नहीं कर सकता। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी तालीम देते हैं कि अज़्ज़ानी लीला, तो इन नज़ानी मतलब मुशरिका, मतलब कोई जानिया औरत किसी जानी मर्द से शादी करेगी या तो मुशरिका मर्द से, मतलब मुशरिक मर्द से। इसी तरह फिर एक मुशरिक मर्द एक मुशरिक जानी उसी से निकाह करेगा जो एक जानी औरत होगी और एक जानी मतलब औरत होगी। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ऐसी तालीम देता मुझे और आपको, क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह तबारक व तआला बतलाते हैं कि तुम अगर पाकबाज हो तो तुम्हारे लिए पाकबाज है। यानी अगर तुम ऐसी औरत को सिलेक्ट करो अपने शादी के लिए, अपने निकाह के लिए, पाकबाज औरत का इंतखाब करो, पाक औरत का सिलेक्शन करो। अल्लाह तबारक व तआला ये तालीम देते हैं इसीलिए कि जो बुराई करने वाले होते हैं उनकी मिजाज में बुराई होती है। जिना करने वाले के मिजाज ये होता है कि उनकी ही फील्ड की औरत मिल जाए, वो चाहते हैं। एक पाकबाज ये चाहता है, दीनदार चाहता है कि उनकी फील्ड की औरत मिल जाए, यानी दीनदार दीनदारी को पसंद करता है, अब बेहयाई करने वाला बेहयाई को पसंद करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि कोई जानी मुशरिक से शादी कर ले या फिर जानी मर्द से शादी कर ले। तो अल्लाह ताला ये मुझे और आपको तालीम सिखलाते हैं कि ये तालीम मुझको और आपको देते हैं कि अगर तुम औरत को सिलेक्ट करना है, अपने लिए लड़की को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले पाकबाजी को देखो, पाकबाज औरत का सिलेक्शन करो। इसीलिए कि तुम अगर पाकबाज को अपनाओगे, दीनदार के अपनाओगे, तो वो तुम्हारे घर को, तुम्हारे माहौल को दीनदार घराना बना देगी। अगर तुम मुशरिका को या जानिया को या बेहयाई को करने वाली औरत को इंतखाब करोगे, सिलेक्शन करोगे, तो याद रखो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर को बेहयाई का अड्डा, फहाशी का अड्डा, बेहयाई की चीज़ों तुम्हारे घर में राइज करेगी और बेहयाई घर बना के तुमको देगी। तो अल्लाह ताला ये नसीहत करते हैं कि तुम पाकबाज हो तो तुम पाकबाज को इख्तियार करो, दीनदार हो तो दीनदार औरत को घर में लाओ। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि एक बेहतरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया, 4 चीजों की वजह से औरत से निकाह किया जाता है। वो 4 चीजों क्या है? इन 4 चीजों की वजह से औरत से निकाह किया जाता है। लिअर्दइन मतलब लिमा अलिहा वल हसबिहा वल जमालिहा वल दीनिहा, मतलब उसकी मालदारी को देखा जाता है, उसके हस्म और नसब को देखा जाता है, और फिर उसके
खूबसूरती को देखा जाए, मतलब जमाल ही है, उसकी खूबसूरती को देखा जाता है। वल दीन ही है, उसके दीन को देखा जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला, फिर अल्लाह के नबी कहते हैं, कहने के बाद कहते हैं, आगे नसीहत करते हैं, तुम दीनदार को अपनाओ, तुम दीनदार का सिलेक्ट करो। ये सब चीज है उसके अंदर मौजूद तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर में अल्लाह के नबी कहते हैं, नसीहत करते हुए कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि तुम दीनदार औरत का सिलेक्शन करो, वरना तुम्हारे हाथ खाक में मिल जाएंगे, यानी तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे अगर तुम दीनदार औरत को अपने घर ना लाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ी प्यारी नसीहत करते हैं इस आयत के अंदर, आयत नंबर 3 के अंदर, कि अगर तुम दीनदार हो तो दीनदार औरत का सिलेक्शन करो। और कोई पाकबाज मर्द ये नहीं चाहता कि उसके घर में बेहयाई औरत आए, तो दीनदार को सिलेक्ट करे। और जो बेहयाई करने वाला होता है उनकी मिजाज बेहयाई होती है और उसी के फील्ड के इंसान को पसंद करता है, वैसी औरत को वो चाहता है। असल में ये जो आयत है उसके शान नुज़ूल ये है, मतलब इसका जो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे वक्त में नाजिल के, एक सहाबी थे, हदीस में आते एक सहाबी थे, मरसद बिन गनी नाम था उनका। क्या करते थे, अल्लाह के नबी ने क्या उनके काम दिया था कि मदीना से जो कैदी हुआ करते उनको मदीना ले जाने का काम क्या करते थे। इसी तरह जब ये मरसद बिन, जो ये सहाबी थे, जो शख्स थे, इनके मतलब कि इनके ज़माने जाहिलियत में एक औरत इनकी दोस्त थी, उसका आनाख नाम था, यानी उनके साथ ताल्लुकात थे, दोस्ती थी। तो एक रात वो गए और फिर कैदियों को ले जाने के लिए वो आए, मतलब मक्का से मदीना ले जाने के लिए आए। तो वहां पर आने के बाद उन्होंने देखा, वो औरत को देखा, और वो औरत को भी पहचान ली उन्होंने। फिर मरसद हो, तो साहबी कहने लगे हाँ मरसद हूँ। तो अल्लाह और आना थी जो उनकी दोस्त थी जानाबे जाहिलियत में, चलो रात गुजारते, यानी कि बेहतरीन मौका है कि चलो रात गुजारते हैं। तो मरसद बिन मुरसद कहते कि मुसलमान हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ, मैं जिना का काम नहीं कर सकता, अल्लाह तबारक व तआला ने जिना को हराम किया है। जैसे ये कहते हैं तो वो आनस नाबी जो औरत थी वो हल्ला मचाती, यानी दो जोर से शोर मचा देती कि एक आदमी आया तुम्हारे कैदी को, उसको पकड़ो। तो उसके लोग उसके पीछे भागते, 8 लोग जो ये सहाबी थे मरसद बिन इनके पीछे लग जाते हैं। तो अपने आप को बचाते बचाते निकल जाते हैं। फिर कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझ पे पर्दा डाल दिया और मैं छुपा कर मदीना पहुंच गया। और मदीना पहुंचने के बाद इस वाक़ये को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा, फिर वाक़या अल्लाह के नबी को बताया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर ये पूछा, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाक से शादी कर लूं, यानी वो लड़की पसंद थी। तो अल्लाह के नबी से कहने लगी, क्या है अल्लाह के नबी, क्या अनाक से निकाह कर लूं? तो अल्लाह के नबी खामोश हो जाते हैं। फिर यहाँ तक कि जब ये आयत नाजिल होती है तो उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं कि हाँ तुम और औरत के निकाह ना करो। क्यों? इसीलिए कि एक पाकबाज मर्द पाकवर्ज औरत के लिए सिलेक्ट करता है। तो अल्लाह के नबी ये तालीम दी कि तुम पाक दामन हो तो तुम पाक औरत को सिलेक्ट करो। तो अल्लाह के नबी मना कर दिया कि तुम उस औरत से निकाह मत करो। अब उसके बाद देखिए चौथी आयत की तरफ चलते हैं। चौथी आयत क्या है, यानी जो लोग पाकबाज औरतों पे तोहमत लगाते हैं, पाकबाज औरत पे जो तोहमत लगाते उनकी सजा क्या है। अगर कोई मुआशरे में पाक दामन औरत पे जो तोहमत लगाए या पाक दामन मर्द पे तोहमत लगाए तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं कि उसके बाद अगर वो 4 गवाह लाए, मतलब अगर किसी को बुराई का काम करते हुए देख ले तो तुमको क्या काम करना है कि प्रूफ करने के लिए 4 गवाह लाना जरूरी है। 4 गवाह लाने जरूरी है। तो फजली दूहुम समाही रजदा, मतलब कोई तोहमत लगाए उसके बाद 4 गवाह ना लेके आए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको 80 कोड़े लगाओ। कितने कोड़े? 80 कोड़े लगाओ। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि उनकी गवाही को कभी कबूल ना करो। ये ऐसे लोग जो झूठे हैं, जो दूसरे पे तोहमतें लगाते हैं और गवाह पेश ना करे, तो ऐसे लोगों को 80 कोड़े लगाओ और फिर इनके गवाही को कभी ना कबूल करो। ये झूठे लोग हैं। फिर आगे अल्लाह पाक कहते हैं यही लोग बदकार है जो औरत पे पाक दामन औरत पे तोहमत लगाते हैं, फिर उसके बाद गवाह प्रूफ भी नहीं पेश करते, तो यही लोग झूठे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई बुराई करते हुए, किसी को बुराई करते हुए अगर देख लिया अल्लाह ताला, तो कुरान मजीद के अंदर मजबूत दलील को क्यों चाहते हैं, यानी मजबूत 4 गवाह क्यों लेके आए?
फिर इसी तरह आप देखें कि ये प्रूफ करने के लिए ये 4 गवाह लेके आना, सामने पेश करना जरूरी। अल्लाह तबारक व तआला इतनी सख्ती से क्यों मना किया? क्योंकि इस्लाम पर्दा पोशी की तालीम देता है, दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालने की तालीम देता है, और इस्लाम में ये सिखलाता है कि अगर तुम किसी के अंदर बुराई देखो तो उनकी पर्दा पोशी करो। अगर ये देख लो कि उन्होंने वाकई बुराई किया तो फिर उनको प्रूफ करने के लिए 4 गवाह लेके आओ, 4 गवाह को कि उन्होंने फलान बुराई किया, फला बुराई किया, हमने देखा, ठीक है ना। 4 गवाहों को लेके आओ तो फिर तुम्हारी गवाही कबूल की जाएगी। अगर तुम 4 गवाह ना लाए तो तुम्हारे लिए सजा क्या है? 80 कोड़े लगाए जाए। और अल्लाह ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि यही लोग झूठे हैं और इनकी गवाही को कभी कबूल नहीं होगी। यानी अगर कोई मुस्लिम कोई आगे गवाही दे तो उनकी गवाही को कभी कबूल ना करो। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आज हमारे पास तोहमतें लगाने में बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं। यानी छोटे छोटे बातों को हम सोशल मीडिया तो ऐसा हथियार है हमारे लिए कि सोशल मीडिया पे छोटा छोटा बात है, सोशल मीडिया के जरिए हम छोटी छोटी खबरों को फैलाना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो खबर सच्ची है या झूठी है, लेकिन जैसे हमारे पास वो खबर पहुंचती है हम शेयर कर देना शुरू कर देते हैं, शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं, ये नहीं जांचते कि ये खबर सही है कि बल्कि उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तोहमत के बारे में बहुत सख्त बयान दिए हैं कि ये तोहमत लगाना इतना बड़ा गुनाह है कि 7 हलाक करने वाली और 7 बर्बाद कर देने वाली चीजों में से एक तोहमत लगाना भी हलाक कर देगी। अगर कोई किसी पे गैर जरूरी तोहमत लगाता है, बोहतान लगाता है, तो ये तोहमत लगाना तुमको बर्बाद और हलाक कर देगी। तो तोहमतों से अपने आप को हिफाजत कीजिए। तोहमत ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ताला खुद नहीं पसंद करते हैं, इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? बी अरबा शुहदा। अगर तुम प्रूफ करना चाहते हो तो 4 गवाह लेके आओ, अगर तुम प्रूफ ना करना चाहते हो तो तुम मतलब यही लोग बदकार है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे में क्या कहते हैं? 4थी आयत देखिए, इल्लल्लज़ीना ताबू मिम्बा ताबू। हाँ, अगर कोई बुराई करने के बाद मतलब तौबा कर ले, मतलब यानी तौबा कर ले, तोहमत का काम करने के बाद, काम करने के बाद अगर वो तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं? फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह बेशक बख्शने वाला, अल्लाह पाक मेहरबान है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इतनी रहमत का यहाँ पे पेश कर रहे हैं, इतना अल्लाह पाक रहीम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, इल्लल्लज़ीना ताबू मतलब तौबा कर ले, फिर अपना इस्लाह कर ले, फिर अल्लाह क्या करते हैं? बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और यहाँ पे अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम मुसलमानों के लिए उम्मीद दिलाते हैं, ये हौसला अफजाई करते हैं कि अगर बुराई करने के बाद अगर तुम अल्लाह की तरफ पलट जाओ तो अल्लाह ताला तुमको माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। अब उसके बाद अल्लाह तबारक ताला एक कानून को बयान करते हैं, ये हुक्म को बयान करते हैं। लिआन मतलब कि बयान करते हैं लिआन को। लिआन का हुक्म क्या है मुझे बताइए? यहाँ पे इस 5वीं आयत में अल्लाह तबारक ताला लिआन का हुक्म करते हैं। वो ये है कि जो ये तोहमत का काम, मतलब कि ये पिछली आयत में तोहमत के बारे में गुजर चुका, यही तोहमत है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी पे लगाए, ये ऐसा मामला आ जाए कि ऐसा पेचीदा मामला आ जाए कि अगर कोई मर्द या अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बुराई करते हुए देख ले, अब वो क्या करे? तो यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो उसका जवाब है वो बयान करते हैं कि जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाए या उनके ऊपर कोई तोहमत लगा दे, ये मतलब यानी एक ऐसा मसला है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को देख ले बुराई करते हुए, तो वो गवाह कहाँ से लाए? वो खुद देखा, यानी अपनी आंखों से उसने बुराई करते हुए देखा। अब बुराई मतलब कहाँ से गवाह पकड़ के लाए? तो अल्लाह तबारक व तआला आसानी करने के लिए कहते हैं कि उसके लिए ये तरीका है, लिआन का तरीका है। अल्लाह ताला ने ये नाजिल किया कि जो शौहर अपनी बीवी को अपनी आंखों से बुराई करते हुए देखे तो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खा के कहे कि मैंने ये बुराई करते हुए देखा। 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाए कि मैंने अपनी बीवी को ये बुराई करते हुए देखा, और फिर 5वीं मरतबा कहे कि अल्लाह मेरे ऊपर लानत हो कि अगर मैं झूठा हूं।
तो लियान का तरीका यही है कि अगर कोई अपनी बीवी की बुराई पे इल्ज़ाम लगा दे, तोहमत का इल्ज़ाम लगा दे, तो शौहर 4 मरतबा अल्लाह की कसम खा के कहेगा कि मैंने ये काम करते हुए अपनी बीवी को देखा, मैं सच्चा हूँ। फिर 5वीं मरतबा कहे कि अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे अल्लाह की नालत बरसे, मतलब इन्नहु सादिकीन, मतलब अल्लाह की नालत बरसे। अगर वो जो काम करे अल्लाह की नालत बरसे मुझ पर, इन्नहु मिलन सादिकीन, अगर मैं सच्चा नहीं हूँ, झूठा हूँ, तो मुझ पर अल्लाह की नालत बरसे। अगर वो जो काम कर रही है या मेरी बीवी जो सच्ची है, मैं झूठा हूँ, तो मुझ पर अल्लाह की नालत बरसे। 5वीं आयत में अब इस तरह औरत का, अगर औरत यानी कि औरत कहेंगी, यानी दोनों के अंदर, शौहर बीवी के अंदर 4 मरतबा कहे अल्लाह की कसम करे, 5 मरतबा कहे मैं सच्चा हूँ। अब औरत कहे कि 4 मरतबा अल्लाह की कसम खा के कहे कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, बल्कि ये मतलब मैं सच्ची हूँ, अल्लाह के कसम खा के कहेगी कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं सच्ची हूँ। और 5वीं मरतबा कहे कि अल्लाह की नालत, अल्लाह का गजब मेरे ऊपर नाजिल हो अगर मैं झूठी हूँ। ठीक है, तो इस तरह 1 मरतबा शौहर करेगा, फिर 5 मरतबा, फिर एक तरफ बीबी कहेगी। अब उसके बाद उन दोनों के दरमियान निकाह फस्क हो जाएगा, मतलब काजी उनके अंदर निकाह को तोड़े, वो खुद ब खुद लियान की वजह से वो शौहर बीबी अलग हो जाएंगे। यानी दोनों में से कोई किसी को बुराई करते हुए देखा है उसने, तो अब तो ये बुराई देखने के बाद कोई शौहर नहीं चाहता कि अपनी बीवी को अपने साथ में रखे, यानी अब नहीं चाहता कि उस बुराई को देखने के बाद जो उसके साथ जिंदगी गुजारे। तो अल्लाह ताला ने ये बेहतरीन रास्ता निकाला, लियान का हुक्म दिया, और लियान का हुक्म हाजिर कर दिया कि शौहर में 4 मरतबा शौहर, मतलब 5वीं मरतबा अपने आप के बददुआ करेगा। फिर उसी तरह औरत प्रूफ करने के लिए 4 मरतबा प्रूफ कसम खाएगी, 5वीं मरतबा कहेगी कि अल्लाह की मैं झूठी हूँ, तो अल्लाह की नालत मुझ पर नाजिल हुई। यानी लियान का तरीका है ये। अगर कोई अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाए झूठा, अब वो गवाह, मतलब गवाह तो नहीं ला सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने लियान का हुक्म दिया है। इस मसले को, इस पेचीदा मसले को वजाहत कर दे। तो यहाँ पर ये था आखिरी आयत है, 9वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला 10वीं आयत में इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह के तुम्हें फर्ज और रहमत ना होती, जो मसाइल, जो पेचीदा है, जो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाती है ना, ये कैसे मसाइल है, ये ऐसे मसाइल है जिसका अल्लाह ताला ने खोल कर रख दी, और फिर अल्लाह का फर्ज तुम पर नाजिल ना होता तो फिर ये मसले तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाता। अब बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले, हिकमत वाला हकीम है। तो ये 10 आयतें थी। इंशाअल्लाह कल के दर्स में जो हमारी तफसीर आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 20 तक जो अल्लाह तबारक व तआला तवील वाक़िया, यानी वाक़िया ईफ को अल्लाह ताला ने बयान किया, और अम्मा आयशा की बारात की एक बहुत बड़ी बयान की, उनकी पाकी का। फिर आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम लोग देखेंगे। तो अल्लाह ताला ने इन अहकामात को, जिन अहकामात को बयान किया, उन अहकामात को मुझे और आपको याद रखना, उस पर अमल करना, क़यामत तक अमल करना और दूसरों को बताना ज़रूरी है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को कुरान मजीद पे अमल करने वाला, अजीज तरीके सहाबा इकराम ने उस पर अमल कर, उस तरह का अमल करने की तौफीक दाता दे, जिस तरह के कुरान मजीद में हम लोगों के नाजिल किया, उस अहकामात को अमल करने को दूसरे तक बताने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।